فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حجت کون ہے، اتھارٹی کون ہے ہمارے لیے؟ وہ ذات رسول ہے۔ رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، رسول نے کہا کہ یہ دین ہے، رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے، رسول نے کہا کہ یہ امام ہے۔ تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو، ثابت یہ کرو کہ یہ رسول نے نہیں کہا، اعتراض نہیں کرو کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، یہ ثابت کرو کہ رسول نے یا علی مدد نہیں کہا۔ اگر رسول نے علی سے مدد نہیں مانگی تو دعوت ذوالشیرہ میں پہلی ہی دعوت میں کھڑے ہو کر کس سے رسول کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ پہلے ہی دن مدد کرے، پہلے دن۔ بابا علی تو 11 برس کی عمر میں رسالت مآب کا مشکل کشا ہے۔ علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی مدد سلامات میرے رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ سے مدد مانگتے۔ دعوت ذوالشیرہ میں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دو ایمان کی، تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا۔ ساری مسلمان کی تاریخیں متفق ہیں، اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا کہ میں ایک نبی بن کے آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے مدد مانگیے۔ مولوی ناراض ہو جائے گا۔ سوچے مولوی ناراض ہو جائے گا، سرکار اللہ سے مدد مانگے، آپ یہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ایک 12 برس کا بچہ اٹھ کے مدد کا وعدہ کر رہا ہے، آپ اس کی مدد قبول کر رہے ہیں، اس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سرکار رسالت کا، شریعت اسلام کا پہلا قانون ہی علی کی مدد بنا رہے ہیں۔ پہلا قانون نماز سے پہلے، نماز سے بھی پہلے، کلمے سے بھی پہلے جو اسلام میں قانون بنا ہے وہ علی کی مدد کا بنا ہے۔ جو ہے نا، کلمہ تو ابھی بعد میں لوگ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ تو ابھی بعد میں کہیں گے لوگ، محمد رسول اللہ تو بعد میں کہیں گے، قرآن تو بعد میں آیا ہے، علی کی مدد پہلے ہے۔ یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگیے۔ مولوی ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی خطبہ دیتا رہتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جمعرات کی روٹی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، خبردار اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے، شرک ہے، صرف اللہ سے مانگو۔ اور عزیزوں یہ تاریخ کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا مولوی، پوری مسجد میں خطبہ دے گا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ سارے مسلمانوں نے مولانا کے قول پہ یقین کر لیا، اچھا جی اللہ سے مانگیں گے، اور بیوی بھی سن رہی تھی برابر میں گھر میں کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو۔ مسجد سے آنے کے بعد افطار کا وقت ہوا، فوراً ہی جلدی میں کہا روزہ ختم ہو جائے گا، جلدی سے مجھے افطاری دے۔ بیوی کہتی ہے اللہ سے مانگو، ہے نا، مانگو یا زندگی کا ہے۔ سوچو، غور کرو۔ بابا نماز میں میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا تھا، آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، کس کا وسیلہ مانگتے ہیں آپ نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ ہاں توجہ ہے نا، توجہ کرو۔ یا علی ہمارے بستر پہ سو، لیکن علی بن کے نہیں، نبی بن کر، صحیح کچھ بھی بن کر سونا سب سے ناممکن کام ہے، کچھ بھی بن کر۔ آدمی جاگتے ہوئے تو کچھ بن سکتا ہے، سوچے نا، صحیح جاگتے ہوئے بن سکتا ہے۔ ایک شخص یہاں آئے علامہ عرفان آبدی بن کے، میری طرح واسکٹ پہنے، میری طرح ٹوپی پہنے، میری طرح چشمہ لگائے، میری طرح خطبہ پڑھے، میری طرح تقریر کرے، جاگتے ہوئے میری نقل کر سکتا ہے، لیکن میں سوتا کیسے ہوں؟ میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے یا علی، یا علی،
सही मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता, हाथ किधर है, पांव किधर है, सर किधर है, जब सो ही रहा हूं। मैं कुर्बान ना हो जाऊं अबू तालिब के बेटे के, जागना तो जागना है, वो सोया भी तो नबी की तरह, सोया भी नबी की तरह। उसके सोने में और नबी के सोने में कोई फर्क होता तो रोजमर्रा के देखने वाले अबू जहल सारी रात ये न समझते कि बिस्तर पे नबी सो रहा है या अली सो रहा है। रोजमर्रा के देखने वाले थे, एक करवट में भी फर्क नहीं था ना, जब तो सारी रात धोखा खाया। उसे कहते अली, जो सोए भी नबी की तरह, उसे शरीयत में अली कहते हैं। तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह, तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह। अली सोता भी है तो नबी की तरह, अली सोता भी है तो नबी की तरह। और सोया, अल्लाह ने नफ्स खरीदा तो बात खत्म हो गई बस। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, और लोगों में एक ऐसा है जो अपना नफ्स बेचता है। तो अब अली ने तो नफ्स बेच दिया ना अल्लाह के पास, अल्लाह की रजा खरीद ली। कुरान क्या कहता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यही थी ना तकरीर आज की, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। मैं कुरान की आयत पर ईमान रखता हूं, हर नफ्स को जायक़े मौत चखना है। मेरे पास नफ्स है, मैं जायक़े मौत चखूंगा। मौलवी के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। इमाम काबा के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। ताबई के पास नफ्स है, वो जायक़े मौत चखेगा। तबे ताबई जायक़े मौत चखेगा। सहाबी ताबई, जिसके पास भी नफ्स है वो जायक़े मौत चखेगा। जो जायक़े मौत चखेगा वो मर जाएगा, जो मर जाएगा वो मुर्दा हो जाएगा, जो मुर्दा हो जाएगा उसे मत बुलाओ। अली के पास भी अगर अली का नफ्स होता, अली भी जायक़े मौत चखता, अली भी मरता, लेकिन अली के पास अली का नफ्स है कहां? अली के पास अली का नफ्स तो अल्लाह के पास है। तो अगर अल्लाह नहीं मर सकता तो या अली मदद भी नहीं मर जो नफ्स अल्लाह का हो उसे मौत नहीं आती। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सबको मौत आएगी, अल्लाह का नफ्स बाकी रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शय कयामत पे फना हो जाएगी, बाकी सिर्फ अल्लाह का चेहरा रह जाएगा। दुनिया वालों, वजुल्ला है कौन अली के अलावा? वजुल्ला है कौन अली के अलावा? ये है वो यब्का वजहु, बाकी रहेगा वजुल्ला, बाकी रहेगा वजुल्ला। अल्लाह की पहचान बाकी रहेगी, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, यही बाकी रहना है। तो जिन्हें मौत न मार सके उन्हें शरीयत में इमाम कहा जाता है। जिन्हें मौत न मार सके उन्हें शरीयत में इमाम कहा जाता है। और हम अपने मरने वाले को कब्र में लिटाने के बाद उसका शाना हिलाकर इसीलिए कहकर आते हैं, हम किसी मुर्दा के हवाले करके नहीं आते, तलकीन में उसका शाना हिलाकर कहते हैं फिक्र न करना, गम न करना, परेशान न होना, ला तखफ वला तहज़न, खौफ न करना, हुज़्न न करना। सवाल मुनकिर नकीर हो, मुनकिर नकीर आए तो उनके जवाब में एतमाद से कह देना मेरा इमाम अली है, मेरा इमाम अली है, मेरा दूसरा इमाम सलावत में देना मोहम्मद। याद रखें, जिनके पास इख्तियारी मौत हो उन्हें मासूम कहा जाता है। जिन्हें मलकुल मौत मार दे उसे बशर कहा जाता है। और जिनके दरवाजे पर मलकुल मौत बगैर इजाजत के दाखिल भी नहीं हो सकता उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सुबह से जाग रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से अपने बच्चों को तैयार कर रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों को नहला रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों के बालों में शाना कर रही है फातिमा ज़हरा।
कलेजे से लगाकर बच्चों को नाना की कब्र पे भेजा, जाओ नाना की कब्र पे सलाम करके आओ। हसन हुसैन सलाम करने के लिए गए। इधर बतूल बीबी अस्मा को बुलाकर कनीज को कहती है, आज मेरा आखिरी दिन है, यह है इख्तियार, आज मैं अपने बाबा के पास जा रही हूं, आज मेरी मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं। फातिमा को बड़ा सताया है इस उम्मत ने, फातिमा को बड़े दुख दिए हैं इस उम्मत ने। सुनोगे जुमला, कितने दुख दिए हैं। अभी घर में हम बैठे हुए थे, बच्चे बातें कर रहे थे, अभी बच्चे बातें करते हुए मैं सुन रहा था, बैठा हुआ, बच्चे कह रहे थे बीबी फातिमा की, हाँ हमारे भाईजान ही कह रहे थे इकबाल मेहदी साहब कि बीबी फातिमा की उम्र 18 बरस, सिर्फ 18 बरस, सिर्फ 18 बरस। आपने देखी है कायनात में कोई ऐसी बीबी जो 18 बरस में ज़ईफ हो? हाँ, आपने देखी है कोई ऐसी मजलूम बीबी जो 18 बरस की कड़ियल जवान उम्र में ज़ईफ हो जाए? मेरे भाई, फातिमा जहरा को ज़ईफ होने के लिए 18 बरस नहीं लगे। बीबी ज़ैनब कहती हैं, घर से दरबार में अपना हक लेने गई थी तो मेरी माँ के बाल सियाह थे, 4 घंटे उम्मत के दरबार में खड़े रहकर महरूम वापस आ गई तो बतूल के सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। हमारे पास कोई गम, हमारे पास कोई अपने आप को तसल्ली देने के लिए लफ्ज़े नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने भांजों को, मैं नुसरत को, शुजात को, सितवत को, नम्मो को, अंजुम को, इन्हें मैं कैसे तसल्ली दूं कि तुम्हारी मां मर गई? इन्हें मैं कैसे बताऊं कि बेटा तुम्हारी मां मर गई, तुम सब्र करो? ये कैसे सब्र करें? लेकिन इन्हें सब्र आ जाएगा कि इनकी मां मर गई तो हैदराबाद से भी अजीज आ गए, कराची से भी अजीज आ गए, लाहौर से भी अजीज आ गए, टेलीफोन पर इत्तला हो गई, सखर के सारे मोमिनीन भी शरीक हुए, इतनी बड़ी तादाद में जनाजे में मोमिनीन शरीक थे, इसलिए कि फातिमा की एक कनीज का जनाजा उठा था। इन बच्चों को जरूर तसल्ली आएगी, बेटा हाँ मैं तुम्हें एक गरीब मां दिखाऊं जिसका मदीने में जनाजा उठ रहा है रात के वक्त। तुम्हें तसल्ली होगी, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी बेटा, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे मामू भी आ गए, तुम्हारे भाई भी आ गए, तुम्हारे चचा भी आ गए, तुम्हारी बहनें भी आ गई, तुम्हारे आइजा भी आ गए, सबने तुम्हें कलेजे से लगाया, बड़ों ने तुम्हें सीने से लगाया, छोटों ने तुमसे प्यार किया, सबने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें तसल्ली हो गई होगी। तुमने अपनी माँ का इलाज भी कराया होगा, तुमने अपनी माँ की खिदमत भी बेटा बहुत की है, साले औलाद हो, बहुत खिदमत अपनी माँ की है। मैं तुम्हें बताऊं, हसन हुसैन की माँ भी बीमार थी, हसनैन की माँ भी बीमार थी। पता कब चला है? जब अली जैसे बादशाह ने फातिमा ज़हरा को लिटाकर गुस्ल देना शुरू किया और अस्मा ने पानी डालना शुरू किया तो अस्मा कहती है कि गुस्ल देते देते अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अस्मा कहती है, शेर खुदा आप रो रहे हैं? मौला आप रो रहे हैं? आप और रो रहे हैं? मौला अली फरमाते हैं, अस्मा मैं फातिमा की मौत पे नहीं रो रहा, फातिमा की गुर्बत पे रो रहा हूं। आज गुस्ल देते हुए पता चला कि दाएं पहलू की पसलियां बाएं पहलू से निकली हुई है, जख्म हरा है और बतूल ने 6 महीने सब्र किया, मुझसे गिला भी नहीं किया। यह है फातिमा, यह है कायनात की शहजादी, यह है कायनात की मलिका, यह है कायनात की मालिक। अज़ादारो जुमला सुनोगे? बस मजलिस खत्म कर रहा हूं। इन्हीं बच्चों को तसल्ली देते हुए ये जुमला कहकर मैं अपनी बहन को इशारे सवाब करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं।
सखर में इतनी बड़ी मोमिनीन की आबादी है। मौला आप सबको सलामत रखे। आप इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहन के जनाजे में शरीक हुए। बेटा तुम्हें तो तसल्ली हो जानी चाहिए कि तुम्हारी माँ के जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन, मोमिनात, आइज़ा, अहबाब सब शरीक हुए। आ मेरे साथ मदीने चल, मैं तुझे एक गरीब बेटी दिखाऊं जिसका जनाजा मदीने में रात के वक्त ताबूत में निकल रहा है, और उस वक्त मदीने की आबादी 40,000 मुसलमानों की आबादी है। तो रसूल की बतूल बेटी के जनाजे में तो सारा मदीना आ गया होगा ना, जनाजा उठाने की जगह भी नहीं रही होगी। खुदा की कसम इन आंखों से पढ़ा कि बतूल रसूल की इकलौती बेटी बतूल, जिसका जनाजा मदीने की 40,000 मुसलमानों की बस्ती में उठा है, उस बतूल का जनाजे का चौथा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था। अब आप तुम समझो या ना समझो, मैं तो पढ़ चुका। इतनी गरीब थी बेटी रसूल की कि उसके जनाजे का चौथा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था। बतूल के जनाजे का अगला पाया अली बादशाह के कांधे पर, दूसरा पाया बूढ़े सलमान फारसी के कांधे पर, तीसरा पाया बतूल के जनाजे का छोटे छोटे हसन और हुसैन के कांधे पर, और चौथा पाया उठाने वाला बतूल के जनाजे का कोई मर्द नहीं था। बूढ़ी फिजा ने बतूल के जनाजे को कांधा दे रखा था और रोज़े रसूल की तरफ रुक करके कह रही थी, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी की गुर्बत देख, ये तेरी बेटी का जनाजा है।